Hello and welcome everyone. I'm your science teacher Himlata Chandolia. Students, today we are going to start a new chapter of class 7 science, that is chapter number 12. And what is the name of chapter class? It is reproduction in plants. Student, this chapter is very informative for us. We are going to learn so many new things. Okay, students, in today's video we are going to discuss about very first about reproduction. What is reproduction? And continuing with it, modes of reproduction, or we can say that the types of reproduction, in which we will discuss about asexual reproduction and sexual reproduction. Students, in today's video specifically we will discuss asexual reproduction in plants. We will continue this topic with types of asexual reproduction. Is that clear, everybody? So begins today's video with reproduction. What is reproduction? Students, reproduction means the production of new individual from their parents. समझ में आया? We can say the production of new individual from their parents is known as reproduction. अपने पेरेंट्स से उनका जैसा एक नया हूबहू बच्चा पैदा करना, it is known as reproduction. It is a process. Is that clear? इसको आप ऐसे समझिए, जो डॉग होते हैं उनका बच्चा बिल्कुल उनका जैसा होता है, जिसको हम पपी कहते हैं. कैट होती हैं, उनका बेबी बिल्कुल उनका जैसा होता है, जिनको हम किटन्स कहते हैं. और ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस करके एक न्यू बेबी को बर्थ करते हैं जो बिल्कुल उनका जैसा होता है. स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, वो एनिमल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं. ठीक है, ह्यूमन बीइंग को ही बर्थ करता है, डॉग पपीज को ही बर्थ करता है, कैट किटन्स को ही बर्थ करती है. आपने कभी सुना है कि डॉग की किटन हुआ है? नहीं ना. दैट मीन्स द पेरेंट्स आर प्रोड्यूसिंग a new individual which is of their own kind. Is that clear? And this process is known as, the production process is known as reproduction. और अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं. इज दैट क्लियर? चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों. हाँ, रिप्रोडक्शन का मेथड सब में डिफरेंट हो सकता है. किसी में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, फादर और मदर. किसी में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो सकता है. इज दैट क्लियर? सो आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन plants. Or students, there are different modes of reproduction in plants, and specifically we divide the modes of reproduction in plants in two types. First one is sexual reproduction. Is that clear? जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स रिक्वायर होते हैं. ठीक है, अब इधर समझो, दोनों पेरेंट्स मेल यानी फादर, फीमेल ठीक है यानी मदर. इज दैट क्लियर एवरीबडी? ठीक है, ये जनरल है. इट इज़, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अबाउट ओनली प्लांट्स. ठीक है, मैं जनरल आपको बता रही हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, मेल भी और फीमेल भी, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इज दैट क्लियर एवरीबडी? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब एसेक्सुअल के नाम से ही पता चल रहा है, ए दैट मीन्स वन, a single sex, okay, a single parent is involved. यहाँ पर दो पेरेंट्स होते हैं और यहाँ पर एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. Is that clear everybody? Let's discuss the reproduction in plants. अब reproduction in plants को डिस्कस करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए, क्या आपको किसी भी प्लांट और ट्री के सारे पार्ट्स याद हैं? Of course याद होंगे, because we already had discussed in class 6, isn't it? Have a look on the picture, students. This part is known as root, and the part just above the root which is providing what? Supplying the mineral and nutrients, isn't it? This is known as stem. There are flowers, there are fruits, leaves, birds, isn't it? Fine. ये general स्ट्रक्चर है किसी भी
प्लांट का. ओके स्टूडेंट्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स. फाइन, रिमेंबर, root, stem, leaves all are vegetative parts of plant and this one is important. Fine, किसी भी plant का root, stem and उसकी leaves उसके vegetative parts कहलाते हैं. Is that clear everybody? और प्लांट के अंदर जो उसके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ये जो फ्लावर होते हैं ये फंक्शन करते हैं रिप्रोडक्शन का. समझ में आ रहा है? किसी भी प्लांट के अंदर जो रूट्स होती हैं, जो उसका शूट सिस्टम है, स्टैम है, उसकी लीव्स हैं, वो उसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं. लेकिन प्लांट के अंदर जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करता है. सो वी कैन से फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. इज दैट क्लियर एवरीबडी? किसी भी प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है? उसके फ्लावर्स. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है, फ्लावर डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और सीड बनाते हैं और ये जो सीड्स होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं और एक न्यू प्लांट डेवलप होता है. आप लोगों ने देखा होगा ना घर में या कभी बाहर या हमारे जो फार्मर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सीड्स सॉ करते हैं और उसके बाद वो सीड्स ग्रो करते हैं और न्यू प्लांट्स डेवलप होते हैं. इज़ दैट क्लियर? तो बेसिक आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट कौन से हैं और प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं. Is it clear to everybody? Let's discuss about sexual and asexual reproduction in plants. Students, what is asexual reproduction in plants? Plants के अंदर asexual reproduction का मतलब होता है when a new plants rise just without seeds. Is that clear? In asexual reproduction of plants, a plant can give rise to a new plant without seed. ठीक है, एक प्लांट से ही दूसरा प्लांट डेवलप होता है बट विदाउट सीड. इज दैट क्लियर? और अभी हमने पढ़ा कि सीड जर्मिनेट करता है और सीड से नया प्लांट ग्रो करता है. क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि बिना सीड के भी प्लांट ग्रो होते हैं? यस, होते हैं. ठीक है, न्यू प्लांट्स बिना सीड के भी प्रोड्यूस होते हैं. और कैसे होते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इन प्लांट्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अ न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स. ओके, न्यू प्लांट कहाँ से मिल रहा है हमको? सीड से मिल रहा है. तो बेसिक डिफरेंस क्या है? एसेक्सुअल में हम विदाउट सीड एक न्यू प्लांट ऑब्टेन कर रहे हैं और सेक्सुअल में वी आर ऑब्टेनिंग अ न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ सीड्स. ओके, अब डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल का मतलब है कि सीड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. अब सीड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम एक प्लांट से दूसरा प्लांट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? देयर आर वेरियस मेथड्स. ओके, लेट्स रीड अबाउट दैम वन बाय वन. फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स को याद रखना. सेकेंड वन इज बडिंग. ओके, third one is fragmentation and fourth one is spore formation. ठीक है, रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स, asexual reproduction, sexual reproduction. अब asexual reproduction के फोर टाइप्स. फर्स्ट वन इज vegetative propagation, second one is budding, third one is fragmentation and fourth one is spore formation. अब हम चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं. अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट? स्टेम, रूट एंड लीव्स. सो द टाइप ऑफ asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stems, leaves and birds. ठीक है, अब ये birds वो फ्लावर वाली birds नहीं हैं. समझ में आ रहा है? ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है कि प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? कुछ भी प्रोपोगेट करना. फाइन. वेजिटेटिव यानी वेजिटेटिव
पार्ट्स को। अब वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। ओके, अब इसको हम एक सिंपल सी एक्टिविटी से है ना समझते हैं। सपोज करिए अगर दो बच्चों में कंपटीशन हो किसी भी एक प्लांट को ग्रो करने का, वो कोई भी एक बच्चा प्लांट ग्रो करे कि फिर कंपटीशन करे कि नहीं मेरे प्लांट के अंदर जल्दी से फ्लावरिंग होगी, तेरे प्लांट में बाद में होगी, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। अब एक बच्चा क्या करता है? एक बच्चा सीड ग्रो करता है, ठीक है, और एक बच्चा जो मेरी तरह स्मार्ट होता है वो क्या करता है? वो किसी भी एक फ्लावरिंग प्लांट का स्टेम, उसका ब्रांच कट करता है और उस कट करे हुए स्टेम को मिट्टी में ग्रो कर देता है। समझ में आ रहा है? जिसको हम क्या कहते हैं? हमने टहनी काट के लगाई। इज़ दैट क्लियर एवरीबडी? ये आपने घर में देखा होगा कभी मम्मा को या गार्डनर अंकल को कि वो क्या कहते हैं, किसी मॉनसून सीज़न के अंदर किसी प्लांट का एक ब्रांच तोड़ते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट से, और उसको ग्रो करते हैं। अब देखो क्या होगा, जिस बच्चे ने क्या किया, सीड मिट्टी में डाला था, उसका सीड पहले जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होके आके फिर वो सैपलिंग बनेगा, इज़न्ट इट? फिर उसके बाद उसमें फ्लावरिंग होगी। लेकिन वो बच्चा जिसने सीधा क्या किया, स्टेम को कट किया और उसको ग्रो कर दिया सॉइल के अंदर, सॉ करके उसके बाद वो प्लांट ग्रो, तो किस में पहले आया फ्लावर? एग्जैक्टली इसमें पहले फ्लावर आएगा, इज़न्ट इट? तो जो सेकंड वाला बच्चा है वो विनर हो गया। उसने क्या किया, पहले वाले बच्चे ने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज़ किया, उसने सीड को जर्मिनेट करके प्लांट ग्रो किया। लेकिन सेकंड वाले ने क्या किया, सेकंड वाले ने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को काम में लिया, एंड दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्यों? क्योंकि उसने प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ किया। इज़ दैट क्लियर एवरीबडी? समझ में आ गया? इसको सिंपली हम क्या कहते हैं? कटिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टेम कटिंग आपने घर में देखी होगी या बाहर भी देखी होगी कि हम रोज़ के अंदर स्टेम कटिंग करते हैं। फाइन, आप रोज़ की कोई भी एक टहनी पर्टिकुलर पॉइंट से काट लेते हैं और उसको मिट्टी में उगा देते हैं। समझ में आ रहा है? और सेम का सेम आपने घर में भी देखा होगा कि मम्मा मनी प्लांट को भी ऐसे ही ग्रो करती हैं, उसको कहीं से पर्टिकुलर पॉइंट से काट लेती हैं, जिसको हम गांठ कहते हैं, ठीक है, वहाँ से उस नोड से वहाँ से उसको कट करती हैं और उसको ग्रो करती हैं और वो धीरे धीरे डेवलप होती है। स्टूडेंट्स, ये जो जहाँ से हम इनको काटते हैं ना, दे आर नोन एज बर्ड्स। हैव अ लुक हियर इन दिस डायग्राम, ठीक है। यहाँ देखो, ये तो सारे क्या हैं? ये हैं नोड्स। पर्टिकुलरली हमें इन पे ही फोकस रखना होता है किसी भी स्टेम कटिंग में। फाइन स्टूडेंट्स, दीज आर द बर्ड्स। कौन सी वाली? हेयर, जस्ट हैव अ लुक। आपने देखा होगा कभी रोज़ की लीव्स को, उनकी जो लीव्स जहाँ पे वो एक कलेक्शन में रहती हैं, वहाँ पर छोटी छोटी और लीव्स भी निकली रहती हैं, एंड दीज आर नोन एज बर्ड्स विच आर प्रेजेंट एट द एक्सल पॉइंट। ओके, एंड व्हाट इज दैट? इट इज़ द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड्स। समझ में आ गया? अब यहाँ से क्या होता है? शूट्स निकलती हैं। हैव अ लुक हियर, ये जो नोड्स है ना, और ये जो आपकी एक्सल बर्ड्स है, यहाँ से नया शूट डेवलप होता है ऐसे, फिर यहाँ पे लीव्स लगना स्टार्ट होती हैं। तो हम हमेशा जब भी स्टेम कटिंग करते हैं रोज़ प्लांट के लिए या किसी और स्पीशीज़ के प्लांट के लिए, तब हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। आपने सिंपल से ऐसे कोई टहनी काटी और लगा दी, नो, यू हैव टू नोटिस दैट कि क्या उसमें नोड्स हैं, क्या उसकी एक्सल बर्ड है। इज़ दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, दीज बर्ड्स आर नोन एज vegetative birds. Which one? These one. Is that clear everybody? और हम स्टेम कटिंग कौन कौन से प्लांट्स में करते हैं? Do you remember about the sugar cane? शुगर कैन के अंदर भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। Is that clear? रोज़ में हम स्टेम कटिंग करते हैं, स्टेम कटिंग हम शुगर कैन में भी करते हैं। शुगर कैन इज अ स्टेम, आप बैम्बू, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब हमें डिस्कस करना है और किसी स्टेम में भी ऐसा होता है क्या? यस, डू यू रिमेंबर योर पोटैटो, आलू?
Yes, it is a stem. रूट नहीं है, it is a stem. अब आपने कभी पोटैटो ऑब्जर्व किया है? सबने किया होगा. ऑन पोटैटो वी आर हैविंग स्कार्स. स्कार्स मतलब वी आर हैविंग द इनसाइड रिजेस. ठीक है, कभी भी स्मूथ नहीं होता है पोटैटो, रफ होता है. ठीक है, बिल्कुल ऐसे गोल मटोल पत्थर जैसा नहीं होता है. इट इज़ हैविंग रिजेस. ठीक है, ये जो स्कार्स होते हैं दीज आर नोन एज आइज. ठीक है, घर में कभी देखना जब कभी आलू आते हैं और कुछ दिन तक वो रह जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर हमें कुछ ऐसी ग्रोथ्स नज़र आती हैं. ये स्टैम्स क्या करता है? आलू क्या है? स्टैम है. ये यहाँ से स्प्राउट होता है और ग्रो करता है. आप एक आलू से बहुत सारे आलू ग्रो कर सकते हो. अब हमें करना क्या है? जब आलू, इसको हम कहते हैं आलू उग गए हैं. यस, ये ग्रो हो गए हैं. आप इसके इस सेक्शन को कट करिए और मिट्टी में उगा दीजिए. इस वाले सेक्शन को अलग से कट करिए और मिट्टी में उगा दीजिए. इसको अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करिए, पानी दीजिए, इसको खाद दीजिए. समझ में आ रहा है? एंड आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट कि एक इस आई से, इस बर्ड से हमें बहुत सारे पोटैटो मिल जाते हैं. इज दैट क्लियर? सो वी कैन कट this potato from the particular this scar, this eye area and grow it. Is that clear? This is also a vegetative propagation. अब देखो, सिंगल एक आलू से हमने कितने सारे आलू बना लिए. ठीक है, क्या हुआ? ये रिप्रोडक्शन ही तो हुआ. ओके, अब आपने जिंजर देखा होगा, अदरक जिसको हम काम में लेते हैं, और कई बार हम डायलॉग भी मारते हैं कैसे अदरक की तरह फैले हुए हैं. मतलब इट इज़ नॉट हैव अ पर्टिकुलर शेप, कैसे भी फैली हुई होती है. देखो कितना इरेगुलर सा शेप है. अब ये जो जिंजर होती है ना बच्चा, ये भी क्या है? हमारा स्टैम ही तो है. इसमें क्या होता है, जो इसके ये जो एंड्स होते हैं ना, इनको आप काट के मिट्टी में ग्रो कर दीजिए. दे विल ग्रो. समझ में आ रहा है? दे विल ग्रो एंड फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू अ प्लांट. समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर फैलती जाती है. समझ में आ गया? सो बाय कटिंग द एंड्स ऑफ द जिंजर वी कैन ग्रो अनदर प्लांट. ओके स्टूडेंट्स, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में लीफ को भी हम इंक्लूड करते हैं. जस्ट हैव अ लुक. दिस इज़ अ ब्रायोफिलम लीफ. ठीक है, ब्रायोफिलम लीफ. अब इसमें क्या होता है, इसमें जो लीव होती है ना, इसके ये जो मार्जिन है बच्चा, इस मार्जिन के पास में आपको छोटी छोटी सी बर्ड्स नज़र आती हैं. अब ये बर्ड्स एक्चुअली होती क्या है? दीज रिजेस, देखो ऐसे. ठीक है, और यहाँ पर जब बर्ड्स ग्रो करती हैं, ठीक है, वो एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती हैं. हैव अ लुक, यू कैन जस्ट लुक इट हियर. ठीक है, ब्रायोफिलम की लीव्स की जो मार्जिन होती हैं वहाँ पर बर्ड्स होती हैं. ये बर्ड्स क्या करती हैं? दीज आर द एडवेंटिशियस बर्ड. ये बर्ड्स ग्रो करती हैं और न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती हैं. आपने घर में भी देखा होगा. इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सॉइल प्रोवाइड करें. ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये बर्ड्स ग्रो होंगी. इसमें छोटी छोटी ना रूट्स निकली हुई होती हैं. जस्ट हैव अ लुक हियर. ठीक है, ये फिर अपने आप ज़मीन पे गिरती हैं, फिर न्यू प्लांट डेवलप होता है. ये नेचर का ना एक अपना तरीका है. ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम पढ़ रहे हैं ना, दीज आर द नेचुरल मैथड्स जो नेचर में अपने आप हो रहे हैं. ठीक है, कटिंग हम करते हैं, बट दिस इज़ अ नेचुरल मीन. Okay, so student, bryophyllum sprout leaf has birds in the margin of the leaves and these birds gradually develop and finally develop into a new plant. Okay, अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपने कभी रूट से न्यू प्लांट्स ग्रो करे हैं? रूट से न्यू प्लांट? यस, root is also a vegetative part of the plant. Roots of some plant can also give rise to a new plant. Have a look here. This is sweet potato. अब don't get confused with it. It is a sweet potato जिसको हम शकरकंदी कहते हैं. समझ में आ रहा है? ये root है, potato stem है. This is root.
ओके एंड हैव अ लुक द रूट्स ऑफ डहलिया. हमारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, अब आ गया हमारा सीज़न, विंटर्स जैसे ही आते जाते हैं हमारा डहलिया अपने आप जड़ों से निकलना स्टार्ट होता है. ये उस सीज़न में जैसे इनका सीज़न जाता है बेटा ये अपने आप ख़त्म हो जाता है, बट इसकी रूट्स रहती हैं, ठीक है. फिर धीरे धीरे ये अपनी रूट से वापस डेवलप होता है. एंड सेम हैपन इन द केस ऑफ स्वीट पोटैटो. ये जो शकरकंदी है ये इसकी जड़ों से वापस एक न्यू प्लांट में ग्रो हो सकती है. समझ में आ गया. बाय स्टेम इन शुगर कैन, इन पोटैटो, इन जिंजर, रोज, isn't it? And by leaf in bryophyllum and by root in dahlia and sweet potato. Vegetative propagation समझ में आ गया. That means the reproduction takes place by the vegetative parts of the plant. प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट हम लेते हैं और उससे न्यू प्लांट्स डेवलप करते हैं. इट मे बी शूट, इट मे बी रूट, इट मे बी लीव्स और बर्ड्स. और बर्ड्स कौन सी वाली बर्ड्स, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. ओके, रूट इज क्लियर टू एवरीबडी कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट फ्रॉम रूट्स. ओके, अब कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा वी आर हैविंग सम ऑर्नामेंटल प्लांट्स एट आवर होम लाइक कैक्टस, इजंट इट. अब ये क्या होते हैं, इनका कोई भी हिस्सा कहीं से भी अगर हम डिटैच कर देते हैं then it will grow into a new plant. Is that clear? Plants such as cacti produce a new plants when their parts gets detached from their main plant body. ठीक है, ये यहाँ से कट हो गया या ये यहाँ से इसका कोई बड कट हो गया है तो वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है. एंड ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. Okay, so students, is it clear to everybody how we can grow a new plant from the vegetative parts of a plant? कैसे करेंगे? By root, by stem, by bud, by leaves. Leaves का हमने example पढ़ा bryophyllum में. Stem का पढ़ा हमने potato, ginger, sugarcane and rose, isn't it? और roots का पढ़ा हमने sweet potato, dahlia. Is that clear everybody? अब जो plants vegetative propagation से produce होते हैं उनसे हमें एक चीज़ clear हो गई. क्या clear हो गई? कि the plants which are produced by vegetative propagation they take less time to grow and bear flowers and fruit earlier than which are produced from seeds. Okay? The new plants are exact copies of the parent plant as they are produced from single parent. समझ में आ गया? ये अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसको इन्वॉल्व कर रहे हैं? सिर्फ सिंगल पेरेंट को, एक सिंगल प्लांट का इन्वॉल्वमेंट है. इज दैट क्लियर? अब सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द सेकेंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज बडिंग. आप लोगों ने ईस्ट का नाम सुना है, दैट वी आर यूजिंग फॉर द fermentation. Yeast is a single cell organism. ठीक है, ये क्या करता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है. जैसे इसको अपनी फेवरेबल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है. आपने देखा होगा कि हम बेकरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके अंदर ईस्ट को यूज़ करते हैं और ईस्ट क्या होता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है फटाफट से. और हमारे जो बेकरी के डो बनते हैं, चाहे वो ब्रेड का डो हो या इडली का डो हो, वो क्या होता है, वो फूल जाता है. इजंट इट? तो ईस्ट ग्रो and multiply in every few hours if it is having the sufficient nutrients. समझ में आ गया? अब ये ईस्ट को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन ईस्ट वी कैन ऑब्जर्व बडिंग. ओके, तो ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है? बाय बडिंग. व्हाट हैपन एग्जैक्टली बेटा? आपका ये जो ईस्ट सेल होता है इसके अंदर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ बर्ड. ठीक है, व्हेन इट इज गेटिंग न्यूट्रिएंट्स जो इसको चाहिए. ठीक है, तो यहाँ देखो ये इसका डेवलपिंग बर्ड है और धीरे धीरे देयर इज अ न्यू बर्ड एंड फाइनली यू विल गेट अ चेन ऑफ बर्ड्स. इन दिस वे दिस ईस्ट रिप्रोड्यूस. ठीक है, एक ही ईस्ट से आपको देखो बहुत सारे ईस्ट मिल गए. तो ये क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो एसेक्सुअल मेथड ऑफ
reproduction. Is that clear? So the small bulb-like projection coming out from the yeast cell, it is called bud. Fine? समझ में आ गया? Okay? The bud gradually grows and get detached from the parent cell and form a new yeast cell. Okay? The new yeast cell grows, matures and produce more yeast cell. समझ में आ गया सब बच्चों को? How there is budding in yeast cell. अब डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड मैथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, एंड दैट इज फ्रेगमेंटेशन. आप सब बच्चों ने एल्गी देखी है, ठीक है? आप लोगों ने जितने भी पॉन्ड्स हैं उनके आसपास ये जो ग्रीन कलर का जो ग्रोथ है, इसको हम क्या कहते हैं? एल्गी. अब ये एल्गी क्या है? प्लांट है, ग्रीन है भाई, तो क्या है? क्लोरोफिल है. Is that clear? And we already had discussed about the algae in our previous chapters. Students, when the water and nutrients are available to the algae, it grow and multiply rapidly by fragmentation. Students, अब ये fragmentation क्या होता है? Fragment का मतलब क्या होता है? टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े. तो एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एल्गी में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? फ्रेगमेंटेशन मैथड. इसमें क्या होता है? जस्ट हैव अ लुक हियर. वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ टाइप ऑफ एल्गी एंड दैट इज स्पायरोगायरा. ठीक है? अब ये स्पायरोगायरा को जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, पानी मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इट डिवाइड. ये दो हिस्सों में टूट जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और फिर हर एक फ्रेगमेंट न्यू एल्गी फॉर्म करता है. ठीक है? फिर वो ग्रो करता है, फिर उनमें फ्रेगमेंटेशन होता है, फिर वो न्यू एल्गी प्रोड्यूस करते हैं. इज दैट क्लियर? फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? दैट यू आर ब्रेकिंग द मेन पेरेंट इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स. ओके? An algae breaks up into two or more fragments. These fragments or the pieces grow into new individuals. Is that clear everybody? Fine. अब हमारा नेक्स्ट मैथड, एंड दैट इज स्पोर फॉर्मेशन. सब बच्चों ने ब्रेड खाई है, ठीक है ना? अब ये जो ब्रेड को हमको बहुत जल्दी फिनिश करना होता है ना, उस पर लिखा होता है 2 से 3 दिन में, 4 दिन में. लेकिन जब आप ब्रेड को बहुत दिन के लिए बाहर छोड़ देते हैं बच्चा पार्टी, तो आपने उसके ऊपर है ना कुछ ऐसी ग्रोथ फाउंड की होगी, कॉटनी सी ग्रोथ होती है. ठीक है? इट इज़ व्हाट? इट इज़ ब्रेड मोल्ड. ठीक है? और ये ब्रेड मोल्ड क्या है? फंगस है. समझ में आ रहा है? इट इज़ अ fungi. So basically the fungi on a bread piece grows from spores which are present in the air. ठीक है? आपकी ब्रेड जब बहुत दिन तक बाहर रह जाती है, तो जो हवा में प्रेजेंट स्पोर्स होते हैं, वो उनको ये फेवरेबल कंडीशंस लगती है और वो इस पे ग्रो होते हैं, एंड इट इज़ अ फंजाई. ओके? अब ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, ये कैसे होता है और स्पोर से रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बच्चा पार्टी, स्पोर्स क्या है? ई सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं. ठीक है? ये हवा में फैले रहते हैं और इनके ऊपर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है. ठीक है? जस्ट हैव अ लुक. आई जस्ट एक्सप्लेन द डायग्राम. हम जो ब्रेड मोल्ड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो फंगाई ग्रो करती है ब्रेड के ऊपर, ये बहुत सारे इनके रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम हाइफी कहते हैं, और ये स्टाक होता है जिससे आपका ये जो स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम के अंदर आपके स्पोर्स होते हैं, और जैसे ही स्पोरेंजियम मैच्योर होता है, ये ब्रस्ट होता है और स्पोर्स बाहर निकलते हैं. समझ में आ रहा है? एंड दिस डायग्राम इज शोइंग द रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन फंगस. इज दैट क्लियर? फिर ये स्पोर्स क्या होते हैं? ये हवा में फैले रहते हैं, एंड व्हेन द स्पोर्स गेट द फेवरेबल कंडीशन, दे ग्रो एंड मल्टीप्लाइज. इज दैट क्लियर? फिर इनके ऊपर क्या होगा? स्पोरेंजियम फॉर्मेशन होगा. फिर जैसे ही ये मैच्योर होंगे, फिर ये ब्रस्ट होंगे. समझ में आ रहा है? और ऐसे स्पोर फॉर्मेशन, दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड्स इन मेनी प्लांट्स. ओके? Under favorable conditions, a spore germinates and develop into new individual. अब कुछ plants है, the plants like moss, याद रखना, and ferns, they reproduce by the means of spores. Have a look. This is a leaf of fern. ठीक है? इस पे क्या होते हैं? यहाँ पर spore forming bodies होती हैं जिनको हम सॉरी कहते हैं.
Is that clear? And by this method, the moss and fern reproduce and develop a new plant. Is that clear, everybody? Students, with this, today's topic of asexual reproduction and types of asexual reproduction completes here. So, in coming video, we will discuss about the sexual method of reproduction in plants. Okay? So, till then, take care everybody and thank you.